Hello my students. Today we will start. I will give you my recorded lecture of all the topics, and on Saturday we will have online interaction through any Google Meet or Zoom, on which we will have the query for the classes I have given you the through recorded lectures. Okay. So today we will start the first topic of first unit, that is your production management. You all know that you have a subject production and materials management. Okay, so firstly we will start with the meaning of production management. Everybody know what is production. Production means the production is the process of converting any input into the output. For example, if you want to make a furniture, so you will convert the wood into the furniture. The process which will क्या कहते हैं done through for converting the furniture to for converting the wood to furniture, that will be called the production. Okay, so what is production? That is, the production is the process of converting any input into the output. That is the meaning of production. Now comes to the point, what is production management? Okay, you all know that any company who is producing or who is manufacturing any product, there are number of activities which is to be done in the production. So there are large number of activities, there are large number of events in the production, and every activity needs to be managed. Managed means कि how much material is coming, how production is going on, how much finished goods is producing, how finished good will be delivered, what raw material is required for producing any output, है ना, how much input is required for that, for how company's factory will be located. मतलब there are various type of decisions which needs to be done by any company. So for that, company makes a separate department, that is the production department, and for the production department functions is to look after all the activities of the production. So now production management means कि managing the production management is the process of planning, organizing, directing on controlling the activities of the production. Means जितनी भी activities होनी है production के अंदर, उसको सबको plan करना कि कैसे उसको I will tell you the later कि what are decisions is to be taken for the production. Okay, so कैसे उसको plan करना है, फिर सारा material organize करना, फिर अपने लेबर को डायरेक्ट करना, फिर कंट्रोलिंग मीन्स कि देखना कि जितना हमने प्रोडक्शन डिसाइड किया था उतना प्रोडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है. तो दैट्स ऑल एक्टिविटीज कम्स अंडर द प्रोडक्शन, और इन सबको मैनेज करना ही इज द प्रोडक्शन मैनेजमेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज what are the objective of production management, कि इससे क्या, but why there is need to make a separate department, why there is need to appoint a production manager, why there is need to क्या कहते हैं do the production management. So there are the objective, there are two type of objective, that is first is ultimate objective and second is intermediate objective. Ultimate objective means our final goal is what are our final goal. Final goal means हमारा लास्ट उद्देश्य क्या है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का. एंड नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट मीन्स कि उस फाइनल ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हमें जो छोटे छोटे बीच के और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, दैट इज आवर इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव. नाउ आई विल डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट इज प्रोड्यूस एट प्री एस्टेब्लिश कॉस्ट. इट मीन्स बेटा यू ऑल नो दैट कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट. कॉस्टिंग डिपार्टमेंट मीन्स कि जितनी भी लागत लगती है, जितना भी मटीरियल आता है, जितना भी पैसा लगता है, वो सबसे ज्यादा खर्च होता है एक प्रोडक्शन के अंदर. ओके, तो प्रोडक्शन ही एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करवा सकता है और उसकी कॉस्ट को ज्यादा करवा सकता है. सो कैसे कॉस्ट को कम करवा सकता है या ज़्यादा करवा सकता है, मीन्स आपने अगर कोई फॉर एग्जांपल एक बॉटल बनानी है, तो उस बॉटल के लिए कितने प्लास्टिक आएगी, उस प्लास्टिक को कितने रुपए पे खरीदना है, उसके अंदर हमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, उनको कौन से कितने रुपए में खरीदना है, कौन सा लिब्रिकेंट यूज़ करना है, कौन सी उसके अंदर हमें प्लास्टिक यूज़ करनी है, दैट ऑल डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन मैनेजर. तो उसको देखना होता है कि उसको कैसे ना कैसे गुड क्वालिटी का बनाए और एट कुछ कम से कम कॉस्ट पे बनाए. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा यही होता है प्रोडक्शन मैनेजर का. जो हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हमने कॉस्ट डिसाइड करी है उस प्रोडक्ट की, उसी कॉस्ट पर वो प्रोडक्ट बनकर आए, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. नाउ नेक्स्ट इज प्रोड्यूस द क्वालिटी अकॉर्डिंग टू प्री डिसाइडेड क्वालिटी. क्वालिटी मीन्स क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट. अगर द प्रोडक्ट विल बी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, इट विल बी सोल्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी. अगर इफ प्रोडक्ट इज ऑफ बैड क्वालिटी, तो इट विल नॉट बी सोल्ड. आपकी कंपनीज इमेज विल बी डिक्लाइंड. ओके, सो सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट होता है किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी. जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, द गुडविल ऑफ द कंपनी, द इमेज ऑफ द कंपनी विल इंक्रीज एंड द सेल ऑफ द कंपनी ऑटोमेटिकली इंक्रीज. ओके, सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एट गुड quality and the quality which is decided in advance. Okay, now next is produces minimum cost. Minimum cost मतलब now next objective is to produce the product at minimum as much as minimum cost. जितना हो सके कम से कम कॉस्ट पर और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बन सके, ये हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी प्रोडक्शन मैनेजर का. क्योंकि अगर हम जितना कम कॉस्ट कम करेंगे उसकी प्राइसेस कम होंगे और उतना ही वो ज़्यादा मार्केट के अंदर बिकेगा. नेक्स्ट इज प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू प्री डिसाइडेड शेड्यूल. शेड्यूल मतलब हमने डिसाइड किया है कि 1 महीने में हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, तो वो प्रोडक्ट 1 महीने के अंदर बनना चाहिए. दैट इज द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. नाउ नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव. इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव मतलब फर्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट. यू ऑल नो दैट कि फॉर द प्रोडक्शन देयर इज नीड ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट. विदाउट मशीनरी एंड इक्विपमेंट नो प्रोडक्शन can be done. So machinery, and you all know that कि machinery is of huge amount. We have to invest large amount of money in the machinery. So next objective of any production department is to acquire the good machinery at the best possible cost and to acquire the machinery which can produce a large number of quantity at the one time. Next is utilization of machinery and equipment. Next objective of production is to utilize the machinery इन अ ऑप्टिमम वे. ऑप्टिमम वे मतलब अगर कोई मशीनरी 500 प्रोडक्ट बना सकती है, तो अगर हम सिर्फ उसका 200 प्रोडक्ट ही हम उससे बनवा रहे हैं, तो देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ दैट मशीनरी. ठीक है, वो 500 प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन हम उससे सिर्फ 200 ही निकाल रहे हैं, तो इससे हमारी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है. हमें क्या करना है, उस मशीनरी से जितने से ज़्यादा प्रोडक्शन करा सकते हैं वो प्रोडक्शन हम ऑप्टिमम उससे कराएं. नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मटीरियल्स एंड मैन पावर. मीन्स जो हमारे पास लेबर है और जो मटेरियल है हम उसका प्रॉपर्ली यूज़ करें. फॉर एग्जांपल, आपको एक बॉटल बनानी है प्लास्टिक की और आप उसके लिए 4 प्लास्टिक की बॉटल लेकर आए हो. आप उसके लिए प्लास्टिक लेकर आए हो और आपने उसको गोल बनानी है. सपोज आपको सर्कल उस शेप में बनानी है, तो आपकी जो आधा उस सर्कल कट के जो भी होगा दैट विल बी वेस्ट. तो आपको कोशिश करनी है कि जो आपका मटेरियल आए आप उसे इस तरह से यूज़ करो कि अगर जो उसके बाय प्रोडक्ट भी निकलता है, अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट के भी हम कुछ और अच्छा से अच्छा बना सके, जिससे कि हमारा नुकसान उसमें क्या हो, कम हो. और जो हमारी लेबर है वो खाली ना बैठे, हम उसका ऑप्टिममली जितना कर सके उतना यूटिलाइज करें. वो एक क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का. जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे घर में अगर हम सपोज घर कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं और हमारी लेबर सिर्फ एक आधे घंटे काम कर रही है, तो हम नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि वो पूरा जितने दिन के लिए आई है वो पूरा दिन उतना काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर जाए. नेक्स्ट इज प्रोवाइड प्रॉपर एंड एडुकेट सर्विसेज. मीन्स प्रोडक्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लेबर जो हमारी मशीनरी पे लोग काम कर रहे होते हैं और उसके अंदर बहुत सारी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं कि किसी का एक्सीडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. तो हमें कोशिश, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ये कोशिश होती है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि उसके वर्कर्स के लिए और उसके जितने भी लेबर है वो उसको प्रॉपर उसको सर्विसेज प्रोवाइड हो कि किसी भी टाइप की उसको इंजरी ना हो. दूसरा, आपको पता है कि मशीनरी प्रोडक्शन होते वक्त काफ़ी सारे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई केमिकल का प्रोडक्ट बना रहे हो, केमिकल रिलीज हो जाए, तो उसके लिए आपको प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए आपकी फैक्ट्री के अंदर. आपको प्रॉपर रिलीज क्या कहते हैं उसमें पॉइंट्स चाहिए जहां से वो गैस निकल सके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्म ना हो. तो क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही सबसे ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रॉपर उस प्रोडक्शन के अंदर जितने भी टाइप ऑफ सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सके, जिससे कि भी हमारा जो प्रोडक्शन फैक्ट्री है या लोकेशन है दैट कैन बी सेफ. That is the objective of any production department. Production management is objective is of 2 types, that is ultimate and intermediate objectives. Okay. Now that is enough for today. Okay. Then we will discuss the next topic next day. Okay.